Now, again, we will study about the fragmentation. So, in this case, we have already seen that we will use the method of the compaction. So, what is the compaction? Just we are going to combine all those free memory holes left by a number of processes. Okay, so these small holes, after using the best fit method, here again by using the best fit method, we will get the smallest holes. Okay, in the different parts of the memory. Okay, because we have already divided the main memory into a number of partition, and as the process will approach and occupy it using the best fit methods, then still we will get some smallest holes, and those free holes, after combining all those free holes, or we can say the free smallest hole, we will get a large block of memory. So we can say compaction is possible only if relocation is dynamic. Okay, so here relocation is dynamic. Just the memory occupied by the process here will use the best fit method, and here the memory techniques we are using, these are the dynamic. Okay, not the static, because here the size of the partition is not equal, but it is variable. Okay, so compaction here we will get as we will use the dynamic memory allocation method. Okay, and is done at execution time, because we are using the dynamic memory allocation method here, then it will be done at the execution time. So the area that is occupied by a particular process will take some time, okay, and will be allocated dynamically, so that we can save the wastage of the memory. Okay, but still after using the best fit method, and we will get the smallest holes left by that particular process. Okay, and it will also depend on the cost. It will directly impact or affect the cost. Okay, so as we will reduce the wastage of the memory, because here we are using the main memory, then the cost will reduce. Otherwise, the cost will enhance, because we always need the more memory, or we can say the more primary memory. Okay, so the cost will enhance, will increase. Now, the what is the internal fragmentation? So internal fragmentation, this is the allocated memory may be slightly larger than the requested memory. Okay, so in this case, the allocated memory may be slightly larger than the requested memory. So what we are requesting, but it will be little bit than the requested memory, because as the process will approach and occupy, then that process will occupy little bit more area as needed. Okay, so this size difference is memory internal to a partition but not being used. So we cannot use that area. So that is called the internal fragmentation. So sometimes the size of the hole are so much small that we cannot use the compaction, we cannot combine, and those very small area will be left, and we cannot use or combine. So that is called the internal fragmentation. That is the very small holes
that we cannot combine is still left, okay, after using the method of the compaction, but still we have some small, very small spaces left. So that is called the internal fragmentation, and we cannot use those very small spaces. Now here, so this is the criteria to divide the main memory. Here you can see, so the address is given 0 to 300, then 500, then 600, then 1000, 1200, 1500, 1900, 2100, and so on. So this is the, here we can say the address, okay. Now in each case you can see here the upper portion that will be occupied by the operating system OS. So the OS will reside always here, you can see, and this is one of the smallest area of the main memory where the operating system will reside. Okay. Now you can see again job 1, job 2, and this is the unoccupied area here. It is not occupied by any process, so unused area, okay. And again the job 3, this is the incoming job and will occupy the space here in the main memory, okay. Again the unoccupied area, space left, big space left here. Again this is one of the largest space left here in the main memory. And similarly, you can see here, this is again the job number 4 and below job number 4. So this is again the unused space. Okay. Similarly, in this case, you can see here, this is one of the big space left. Still, this is the unused space. Okay. So the other processes or other jobs may be used in the future. So this is the unused space left in the main memory. So still there are no any job, or we can say the processes in the waiting in the queue. Okay. Now similarly here you can see again the area occupied by different number of jobs. Job number here, this you can see 4, and later on after waiting in the queue, the job 3 is arriving here, is reaching here. Okay. So sometimes due to the priority, uh, just we are giving the priority to job number 4. So CPU will process first job number 1, 2, and 4 as per priority. Here you can see. Now here you can see again, this may be the very largest area. Okay. Left by here the main memory. So here again the job number 4 and 3 are coming. So there is no any here method or the rules, and it will also depend on the priority will be provided to the number of jobs. So they will occupy as per their need in the main memory. Okay. Now paging, here you are already aware by the, you have little bit knowledge about the paging and segmentation. So what is the physical Sir, address and the logical address? Okay. So what is the difference between the logical and physical address? Please, anybody else, what is the logical address? I have already told you in some earlier classes. What is the logical address? Please, anybody else? What is the physical address? सर लॉजिकल एड्रेस सर आईपी एड्रेस को कहते हैं सर, जो कि सर हमारे प्रोसेस के साथ इस्तेमाल होता है। और फिजिकल एड्रेस सर जो हमारी मेमोरी को स्टोर होता है सर प्रोसेस को, तो जिस लोकेशन पे होता है उसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। अच्छा, तो आईपी एड्रेस यहाँ पर क्या मतलब है? What do you mean by the IP address here? I think you are telling in context of नेटवर्क the एड्रेस some होगी। networking. यस सर, यस, वहाँ पे भी होता है सर। जी सर। But in context of the CO लॉजिकल computer एड्रेस इज organization, सर इन विच in context of जिसमें the एक computer आइटम organization, what is the logical address? How will you define this?
The address सर जिसमें एक that is generated by the CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जनरेट करता है आपका एड्रेस, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एड्रेस। समझ रहे हैं भाई? सीपीयू जब यस सर। हाँ, कोई एड्रेस जब जनरेट करेगा, कोई प्रोसेस गई आपकी सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए, प्रोसेसिंग होगी वहां पर, तो सीपीयू एक एड्रेस देगा, जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एड्रेस। सो लॉजिकल एड्रेस इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Okay, and what is the physical address? What is the सर जो मेन मेमोरी में यूज होता है। yes. Okay, so the address which we will obtain as the process will reach and occupy to the main memory. Okay, तो जो मेन मेमोरी में जब प्रोसेस आपका जाएगा, तब वहां पर जो एड्रेस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस। So this is the difference between the physical and the logical address. Okay, so here यस सर। you are already aware by the concept of the paging and segmentation. Paging means fixed size here, and segmentation variable size. So it will depend on the size of the block. So if the size of blocks are same, then we can say the paging. So what is the physical address space of a process? Here we can say can be non-contiguous. So what is the contiguous and non-contiguous? कॉन्टिगुअस क्या समझ रहे हैं आप? व्हाट इज द कॉन्टिगुअस क्या होता है भाई? और नॉन कॉन्टिगुअस क्या है? कॉन्टिगुअस मींस सर उसमें कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं है, यस सर। यानी पार्ट्स में कि डिवाइड नहीं है प्रोसेस। हाँ, यस यू आर राइट। कॉन्टिगुअस आपका यानी कि एक फिक्स्ड साइज है आपका पार्टीशन का, तो कोई प्रोसेस गया उस फिक्स पार्टीशन को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। ओके, तो वो आपका कहलाएगा कॉन्टिगुअस। कोई भी प्रोसेस आपका जा रहा है मेमोरी में, रैम में गया, मेन मेमोरी में गया, तब उसने ऑक्यूपाई कर लिया एक पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिगुअस, मींस सिंगल पार्टीशन। ओके, तो एक प्रोसेस एक पार्टीशन में गया आपका, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिगुअस। यू आर नॉट गोइंग टू डिवाइड फर्दर दैट पार्टीशन। ओके, so here they are saying that physical address space of a process can be non contiguous। तो physical address के बारे में बात कर रहे हैं क्या? can be non contiguous, non contiguous हो सकता है, means just you are going to again divide that particular area। so यहाँ पे आपने देखा they are going to divide here dynamically, okay, changing here, and so the address will change। so the physical address here will change because बेस एड्रेस और आपका लिमिट जो रजिस्टर होता है उसका एड्रेस कंबाइंड होगा, देन यू विल गेट द here physical address। okay, so that will change। so and here non contiguous means just you are going to divide that। so process allocates physical memory whenever the latter is available। so here we will calculate the remaining area of the main memory। ओके, तो यहाँ पे हमने जब पार्टीशन करे उसके, तो यहाँ पार्टीशन इक्वल नहीं थे आपके। पार्टीशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस which are going to process in the CPU, central processing unit, one by one। okay, so the memory that will be allocated or occupied by a number of processes। so here the partition of the memory we can say is non-contiguous because we are going to divide, and now it will depend on the criteria, the non-contiguous here partition that will depend on the size of the process। तो यहाँ पर साइज ऑफ द प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कितना साइज है, उसके अकॉर्डिंग यूज होगा, और वी कैन क्रिएट द फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स। अगर फिक्स साइज ब्लॉक्स में आप फिजिकल मेमोरी जो आपके पास है, यानी कि मेन मेमोरी जो आपके पास है,
डिवाइड कर रहे हैं, हम लॉजिकल मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं, अब फिजिकल मेमोरी की बात कर रहे हैं, यानी कि रैम में आ गए हम। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो आएंगी, अब उसका साइज कैलकुलेट होगा, आपका कितना साइज है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फिट यूज कर रहे हैं या बेस्ट फिट कर रहे हैं या वर्स्ट फिट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में जब प्रोसेसेस आएंगी तो फिर आप क्या देख रहे हैं, डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। तो यहाँ पर फिक्स साइज ब्लॉक्स में अगर आप डिवाइड करा फिजिकल मेमोरी को, तो उसे हम कहेंगे फ्रेम्स। तो दैट आर कॉल्ड द फ्रेम्स। फ्रेम्स कब कहलाएंगे, जब फिक्स साइज ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर हमने कई ब्लॉक्स बना लिए 2 के साइज के या 4 के सारे साइज बराबर हैं यहाँ पर। तो लेकिन हमें कैसे कंसीडर करना है, किस तरह से डिवाइड की जाती है, साइज इज पावर ऑफ 2। ओके, सो वी कैन कंसीडर 2 here, 2 to the power 2 4, 2 to the power of 3 4 and so on up to 2 to the power n, and that will depend on the size of the total available memory. So the size may be 512 bytes or 16 MB, 16 megabytes here. Okay, that will depend on the total size of the main memory. So we will always consider or divide our physical memory into fixed size block, और वो फिक्स साइज ब्लॉक्स क्या कहलाते हैं, हमारे फ्रेम्स कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए हम हमेशा साइज ऑफ पावर 2 में कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिक्स साइज ब्लॉक से ले रहे हैं, तो उन फिक्स साइज ब्लॉक्स को हम फ्रेम्स कहेंगे। नाउ डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज। अब क्या करा हमने यहाँ पर, फिजिकल मेमोरी को अगर फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो कहला रहे हैं फ्रेम्स, और लॉजिकल मेमोरी को अगर हमने सेम साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया तो वो कहला रहा है पेजेस। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी फ्रेम्स एंड पेजेस। तो फ्रेम्स क्या हो गए, फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करना बराबर साइज में, और अगर लॉजिकल मेमोरी को अगर आपने सेम साइज जो ब्लॉक्स हैं उसमें डिवाइड कर दिया तो वो पेजेस कहलाएंगे। तो पेजेस मींस रिलेटेड टू द लॉजिकल मेमोरी, फ्रेम्स रिलेटेड टू द फिजिकल मेमोरी। तो ये आपका डिफरेंस है दोनों में। लॉजिकल मेमोरी आपके ब्लॉक्स जो सेम साइज के लिए जा रहे हैं, और या फिजिकल मेमोरी को आपने ब्लॉक्स को सेम साइज बनाया है, तो वो फ्रेम हो गए, ये पेजेस हो गए। ये तो डिफरेंस हो गया आपका। अब टू रन ए प्रोग्राम ऑफ same size and pages, need to find n free frames and load the program। अब सबसे पहले क्या होगा, आप लॉजिकल एड्रेस की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग, कोई प्रोग्राम आपने भेजा उसकी प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होगी, सीपीयू में होगी। तो सीपीयू में जब होगी आपकी, तो लॉजिकल एड्रेस यानी कि डेवलप होगा, वहाँ पर क्रिएट होगा, यानी कि लॉजिकल मेमोरी की बात करेंगे आप। और लॉजिकल मेमोरी की जब बात करेंगे आप, तो फिर बात करेंगे आप सेम साइज ले रहे हैं ब्लॉक्स का या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सेम साइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें आएंगी आगे आप देखेंगे। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं लॉजिकल मेमोरी की। तो लॉजिकल मेमोरी का अगर आपने सेम साइज ले रहे हैं, ब्लॉक्स को डिवाइड करा तो डिफरेंट सेम साइज लिया अगर, तो पेजेस कह रहे हैं। ठीक है, अब आपने मान लिया लॉजिकल मेमोरी यानी कि जो सीपीयू मेमोरी थी उसे डिवाइड कर दिया आपने एन नंबर ऑफ पेजेस में। ठीक है, साइज एंड पेजेस। ओके, अब जब साइज एंड पेजेस इधर बन जाएंगे तो उधर हमें फिर, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस कहाँ पर जा रहा है आपका, मेन मेमोरी में। जब जो आपकी प्रोसेस थी मेन मेमोरी के बाद में आपकी कहाँ पर गई, कहाँ पर गई भाई, मेन मेमोरी में जाएगी। ठीक है, सीपीयू के यस बाद सर। में, सीपीयू के बाद में कहाँ पर जा रही है, मेन मेमोरी में जा रही कोई प्रोसेस। तब फिर क्या होगा, ये साइज एंड पेजेस को साइज इतना ही एंड फ्री फ्रेम्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर पेज को फिक्स ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज में कर दिया आपने डिवाइड डिफरेंट ब्लॉक्स में। तब ये प्रोग्राम यहाँ से सीपीयू से आपका मेन मेमोरी में जाएगा। ठीक है, सो अब हमें क्या होना है यहाँ पर, एन पेजेस यहाँ पर हो गए, यानी कि जब हम पेज की बात करेंगे तो हम समझो लॉजिकल मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक, फ्रेम्स की बात करेंगे तो हम फिजिकल मेमोरी की बात कर रहे हैं।
तब फिर क्या होगा, जितने यहाँ पर पेज होंगे उतने यहाँ पर फ्रेम्स भी हमें चाहिए, और तब फिर प्रोग्राम आपका लोड हो जाएगा। ठीक, ये देखिए आप, बैकिंग स्टोर लाइक वाइज स्प्लिट इनटू पेजेस। यहाँ देखेंगे आप, बैकिंग स्टोर लाइक वाइज स्प्लिट इनटू पेजेस। यहाँ पर देखिए न्यू कोई प्रोसेस है आपका, तो ये नंबर ऑफ पेजेस में ब्रेक कर लिया गया, पेज 0 1 2 3। अब डिपेंड करेगा, कोई न्यू प्रोसेस आ रही है आपकी, तो न्यू प्रोसेस को कितने पेजेस चाहिए, यानी कि कितने ब्लॉक्स चाहिए, उतने ऑक्यूपाई कर लेगी। यानी कि जो लॉजिकल मेमोरी आपने डिवाइड कर रखी है पेज नंबर्स में, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n, तो फिर it will depend on the size of the process, how many pages are required। pages क्या है आपका, मेमोरी है, ठीक है। तो how many, or we can say how much memory is required by a particular incoming process। तो यहाँ पर उतने ही पेज ऑक्यूपाई कर लेगा आपका प्रोसेस, लेफ्ट पेजेस रह जाएंगे, तो फिर कोई न्यू प्रोसेस आएगा वो ऑक्यूपाई करेगा सिमिलरली, और कोई न्यू प्रोसेस आएगा वो ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद फिर भी आपका कुछ ना कुछ स्पेस बचेगा। ठीक है, जिस तरह से आप देखें सीपीयू कितना आपका यूज हो रहा है, ठीक है, ऑक्यूपाइड कितना, एफिशिएंसी कितनी है, कभी आप देखेंगे आइडल आ जाता है उसमें, इतने परसेंटेज ऑक्यूपाई हो रहा है उसमें, ठीक है। तो क्या रहता है उसमें, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपकी आती रहती हैं और पेजेस को ऑक्यूपाई करती हैं, यानी कि लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड करके ऑक्यूपाई होता रहता है। उसके बाद में वो सीपीयू रिलीज करता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, तब फिर आपकी मेन मेमोरी में जाती है, वहाँ पर नए फ्रेम्स को ऑक्यूपाई करती जाती है और फिर प्रोसीड हो जाती है इस तरीके से। तो सेटअप है पेज टेबल। तो यहाँ पर क्या रहता है, हमारे पास में एक ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द रिकॉर्ड्स फॉर ईच लॉजिकल मेमोरी, और वी कैन से लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी टू। तो यहाँ पर पेज टेबल एक होती है, यहाँ पर आपका रिकॉर्ड रहेगा नंबर ऑफ पेजेस का। तो सेटअप ए पेज टेबल टू ट्रांसलेट लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे लॉजिकल एड्रेस जब फिजिकल एड्रेस में चेंज होगा, तब आपके पास एक पेज टेबल होगी वहाँ पर, और वहाँ एड्रेस यू कैन फाइंड द फिजिकल एड्रेस देयर। तो यहाँ पर टेबल में यानी कि स्टोर होता रहेगा जितनी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी लॉजिकल एड्रेस, ओके, एंड देन वी कैन गेट द फिजिकल एड्रेस टू। सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल फ्रेम्स। तो यहाँ पर जो भी सिस्टम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो सारे फ्रेम्स का रिकॉर्ड, सारे पेजेस का रिकॉर्ड, यानी कि लॉजिकल मेमोरी का और फिजिकल मेमोरी का सबका रिकॉर्ड रहेगा। तो यहाँ पर आपका पेज टेबल में पेजेस का रिकॉर्ड आ गया यहाँ, और जितने सिस्टम होगा वो क्या कर रहा है, कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल फ्री फ्रेम्स। अब इसके पास में ये भी पता होगा कितने फ्री फ्रेम्स बचे, ठीक है, यानी कि जो फिजिकल मेमोरी एड्रेस है वो कितना और वहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, जिससे आपको नए के लिए वो यूज़ कर सकें, नए प्रोसेस के लिए। तो यहाँ सारा रिकॉर्ड आपका मेंटेन रहेगा इसमें। नाउ पेजिंग मॉडल ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल मेमोरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3 आपने सपोज करिए डिवाइड कर रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू मेमोरी को, ये इस तरह से पेज 0 1 2 3। तो दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल मेमोरी, ओके, सीपीयू मेमोरी ये है आपकी, तो दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल मेमोरी। अब आपका प्रोसेस आया ऑक्यूपाई ये करेगा, तो ये पेज टेबल है जो रिकॉर्ड रख रहा है आपके पेजेस का, ठीक है, कितने ऑक्यूपाई करे किस प्रोसेस ने, ठीक। तो इसका यहाँ पर देखेंगे 0 1 2 3, ये आपका यहाँ लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर सीरियली। तो यहाँ रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, प्रोसेस 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, इस तरह से ये डिफरेंट प्रोसेसेस आ रहे हैं। पेज टेबल ये आपका रिकॉर्ड मेंटेन रख रहा है किसका, लॉजिकल मेमोरी का, ठीक है, कितने पेजेस आपने ऑक्यूपाई किए, कितने और बचे हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये फिजिकल मेमोरी है, ये हम बात करेंगे रैम की। यहाँ पर ये आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो यहाँ फ्रेम की बात होगी क्योंकि फिजिकल मेमोरी हमें यहीं से मिल रही है, फिजिकल एड्रेस यहाँ पर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम नंबर्स है, वी हैव ए नंबर ऑफ फ्रेम नंबर्स। यहाँ पर पेज नंबर्स हैं आपके ये सब, ओके, पेज नंबर्स मिल गए आपको, और यहाँ पर फ्रेम नंबर मिल गए हमें। तो यहाँ पर हम अभी फ्रेम नंबर दिखा रहे हैं, बट इट विल चेंज इनटू दी
फिजिकल मेमोरी हमें मिलेगी, जो आपका यहाँ लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है, यहाँ मेंटेन करेंगे हम एड्रेस, that will be maintained by the operating system. Okay, then that time we will not indicate here the frame numbers. Okay, so we will write the physical address here on the main memory. So this is called the physical memory. So in this case, now you can see page table to translate logical to physical addresses. So here we have the logical address, and then this page table maintain the record of this logical memory. Okay, all the page numbers occupied by the process. Okay, and here this is the RAM, random access memory will generate the physical memory. So how the conversion is taking place or the translation is taking place from logical to physical address. Okay, so here you can see this is the random, here we can say the processes occupied by the here by the main memory. Okay, so this is the actual, we can say the real, here the page 0, it will come here page 0, page 1, this page 2. Okay, तो यहाँ आप देख पाएंगे कहाँ कहाँ पर आपका जो प्रोसेस है ऑक्युपाई कर रही है आपके नंबर ऑफ पेजेस को, मींस हियर दीज आर द लॉजिकल एड्रेस, ओके, दैट आर गोइंग टू चेंज इनटू द frame numbers or physical address. So here we will get the physical address. So this is called the physical memory, means the main memory. Now there are various address translation schemes. So how the address will change from logical to physical memory. ओके, तो लॉजिकल एड्रेस है आपका और फिजिकल एड्रेस है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देयर आर नंबर ऑफ वेरियस स्कीम्स व्हिच वी विल यूज. ओके, हाउ द लॉजिकल एड्रेस इज चेंजिंग और ट्रांसलेटिंग इनटू द फिजिकल मेमोरी एड्रेस. ओके, so address generated by the CPU, okay, is divided into page number. Again, we have already discussed. Okay, CPU address, CPU क्या कर रहा है, जनरेट लॉजिकल एड्रेस कर रहा है, और लॉजिकल एड्रेस जब हम ब्लॉक साइज हमने बराबर रखे हैं, डिवाइड कर दिया डिफरेंट ब्लॉक्स को, तो हमें पेज नंबर मिल गए. तो पेज नंबर की जब भी हम बात करेंगे तो CPU लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं. ओके, तो पेज नंबर हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, P से. used as an index into page table. यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स एक सीरियल नंबर आपने मेंटेन करा है, पेज नंबर 0, 1, 2, 3, ये आपने देखा, इंडेक्स, इंडेक्स आपका कहला रहा है यहाँ पर. ओके, इनटू ए पेज टेबल, जो पेज टेबल मेंटेन कर रहे हैं, तो पेज नंबर आपको पी से इंडिकेट कर रहे हैं, विच कंटेंस क्या आपका इसमें मिला हुआ बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज. तो बेस एड्रेस और की बात करेंगे तो हमारे पास सीपीयू में जो रजिस्टर्स रहते हैं, तो वहां से हमें बेस एड्रेस मिलेगा. ओके, तो ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी, तो विच कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज, तो हर पेज का एक अपना बेस एड्रेस होगा. ओके, ऑफ ईच पेज, तो वो हमें कहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, इन फिजिकल मेमोरी. ओके, जब चेंज होगा आपका, ट्रांसलेट होगा फिजिकल एड्रेस में, तब क्या हो रहेगा, पेज नंबर हमें ये लॉजिकल एड्रेस से मिल रहा है, और फिर ये स्टोर कर रहा है पेज टेबल, उसके बाद में हमें फिजिकल मेमोरी यानी कि यहाँ पर फिजिकल एड्रेस मिलेगा. पेज ऑफसेट डी, अब ये देखिए डिवाइड इन्होंने करा है किस तरह से, पेज नंबर पी और ये पेज ऑफसेट को दिखाया है डी से. पेज ऑफसेट, ऑफसेट विद इन ए पेज. ओके, कंबाइंड विद बेस एड्रेस, तो यहाँ पर ऑफसेट कैसे मिल रहा है आपको, पेज ऑफसेट डी कैसे मिला, कंबाइंड विद बेस एड्रेस टू डिफाइन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस दैट इज सेंड टू द मेमोरी यूनिट. तो जब हम मेमोरी यूनिट में बेस एड्रेस सेंड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, फिजिकल मेमोरी पेयर. नाउ अगर आप इस पेज को किस तरह से दिखा रहे हैं, देखिए ये कंप्लीट पेज है आपका, तो पेज नंबर डिवाइड करा आपने पेज ऑफसेट, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पेज टेबल है आपकी. तो पेज टेबल देखिए किस तरह से इन्होंने पेज नंबर और पेज ऑफसेट ये डिवाइड करा है यहाँ पर. और ये आपका मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में देखिए ये पेज दिखा रहे हैं, इसे किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, पेज किस तरह से पहुंचेगा इसका जब चेंज होगा आपका फ्रेम में. ठीक है,
तो फ्रेम में ये चेंज हो जाएगा और फिर आपको फिजिकल एड्रेस मिलेगा। तो फॉर गिवन लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस यहाँ पर इन्होंने दिखाया 2 to the power m एंड पेज साइज 2 to the power n। तो यहाँ पर एड्रेस स्पेस कितना मिल रहा है हमें, लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात करेंगे यानी कि टोटल स्पेस कितना है, तो दैट इज 2 to the power m। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो साइज इन्होंने लिया है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास एम यानी कि फिजिकल एड्रेस, फिजिकल मेमोरी का साइज हमें मालूम है कितने बाइट है, यानी कि एम आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कितना आपके बिट्स यूज कर रहे हैं आप, उससे आपने स्पेस कैलकुलेट करा, टोटल बिट्स आप यूज कर रहे हैं एम, लेकिन आपने एन यहाँ पर पेज ऑफसेट यानी कि दिखाया, यानी कि पेज साइज कितना है आपका, आपने कहा एन। ठीक है, तो पेज साइज कैलकुलेट करेंगे, ब्लॉक्स आपका एन, टोटल नंबर ऑफ पेजेस ले रहे हैं एन, तो यहाँ पर पेज साइज कैसे कैलकुलेट किया, 2 to the power n। टोटल नंबर ऑफ बिट्स आप यूज कर रहे हैं एम। ठीक है, तो यहाँ पर m माइनस एन यानी कि ये साइज है और n ये है, टोटल अगर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स मिल जाएंगे आपको m, यहाँ पर m माइनस एन प्लस n यानी कि टोटल साइज कैलकुलेट करेंगे तो वो m मिलेगा आपको। तो उसी m साइज को इन्होंने डिवाइड कर दिया पेज नंबर और पेज ऑफसेट में। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 2 to the power m एंड पेज साइज 2 to the power n कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये पेजिंग कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है, गिवन दैट लॉजिकल एड्रेस, तो लॉजिकल एड्रेस है 2 to the power m। ओके, तो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, m क्या है आपका, यहाँ पे ले लिए पेज नंबर्स आपने कितने यूज करें, यानी कि लॉजिकल एड्रेस कैसे मिल रहा है 2 to the power m करके, यानी कि पेज यहाँ पर आपको सीपीयू जनरेट, यहाँ देखिए पहले ये समझ लेते हैं, सीपीयू जनरेट लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है सीपीयू। ठीक है, बात कैसे जनरेट कर रहा है यहाँ पर, तो इन्होंने बताया पेज नंबर प्लस पेज साइज, पेज नंबर क्या है प्लस पेज साइज क्या है, उसका एडिशन मिला के जब ऐड कर रहे हैं देन यू आर गेटिंग द सीपीयू एड्रेस, यानी कि सीपीयू जनरेट लॉजिकल एड्रेस। ओके, तो सीपीयू ने जो जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस, तो दैट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ पेज नंबर प्लस पेज साइज। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पेज, कितने टोटल नंबर ऑफ पेज आप यूज कर रहे हैं, यानी कि जो डिवाइड किया है टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने में डिवाइड किया है आपने, उसके बाद फिर बात आती है पेज का साइज क्या है। ओके, इट मे बी ए 2K 4K और मोर। ओके, पेज नंबर मे बी 100 पेजेस, जो आपने सीपीयू मेमोरी को डिवाइड किया है, तो वो कितने पेजेस में डिवाइड किया है, तो दैट इज एम। ओके, तो लॉजिकल एड्रेस कैसे मिला आपको, पेज नंबर प्लस पेज साइज 2 to the power m। ओके, पेज साइज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं 2 to the power n, और यहाँ पर n ये दिया हुआ रहेगा आपको पेज ऑफ, यहाँ पर n और m माइनस n ये नंबर ऑफ बिट्स हैं आपके, जब भी डिवाइड करेंगे ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ बिट्स में से अगर ये n निकालेंगे तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्पेस कितना ऑक्यूपाई पेज ऑफसेट कर रहा है और पेज नंबर्स में कितना है, तो वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप। तो नंबर ऑफ पेज, आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, लॉजिकल एड्रेस LA, लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड बाय पेज साइज। ओके, तो नंबर ऑफ पेज, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं, तो 2 to the power m डिवाइडेड बाय 2 to the power n। ओके, तो 2 to the power m माइनस n आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज यू कैन कैलकुलेट। सो पेज साइज n बिट, पेज नंबर m माइनस n बिट, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग। तो पेज नंबर्स कैसे ले रहे हैं आप, m माइनस n बिट, ये बिट्स हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं आपके, वो डिपेंड करेगा आपका टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना ले रहे हैं। फिर पेज साइज अगर आप वो भी कैलकुलेट हमेशा बिट्स में ही किया जाएगा, क्योंकि मेमोरी हमेशा बिट्स में ही होती है, आइदर केबी और एमबी और जीबी। ओके, तो नंबर ऑफ बिट्स देखेंगे टोटल कितने, तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेजिंग एंड वी कैन
calculate the page size as well as the total number of pages in which we are going to divide our, we can say, the CPU मेमोरी। तो CPU मेमोरी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो वो पेज साइज आपको पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस पता चल जाएंगे कितने, तो ये पेजिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो पेजिंग कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई हो रहा है आपका, CPU मेमोरी में, जहाँ पर लॉजिकल एड्रेस डेवलप हो रहा है। उसके बाद फिर हम MMU में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द मेन मेमोरी यूनिट। दो लोग कौन चलेगा भाई अभी? एक्चुअली आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस अगेन। पहले 12 थे, अभी 10 लोग हैं टोटल, हमें इंक्लूड करके, कहने का मतलब है। तो अगर वो लोग ज्वाइन कर लें तो अटेंडेंस हो जाएगी उन लोगों की भी। क्लोज करने जा रहे हैं क्योंकि हम अब टाइम बचा नहीं है ज़्यादा। तो अगर कोई, चलिए ठीक है भाई, एनी क्वेश्चन प्लीज।